Uh, Personally, I lost my sight when I was 6 months baby because of typhoid and heavy temperature. The impact of Braille on blind people like me is very, very significant. It has enabled us to one to pursue education, two to pursue profession, three to pursue passion, and four to communicate. Blindness is a problem. Many people say yes, it is, but it is more a challenge than problem. If the right kind of support systems are created, people can become independent and become self-reliant. Literacy, the most crucial parameter in measuring the development of a nation, or perhaps the most significant element in the upliftment of an individual. It has been a necessity and a vital need for hundreds of years for the sighted. Why then should it be any different for those with visual impairments? In recognizing this, Louis Braille set about creating the Braille script that today is a tower of strength for the visually impaired community. ब्रेल एक भाषा नहीं, जैसा कि मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि ये भाषा है। ये भाषा नहीं, ये लिपि है। जैसे देवनागरी एक लिपि है, जैसे रोमन स्क्रिप्ट एक लिपि है, वैसे ब्रेल भी एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, जिसको उंगलियों के पोरों से छू करके, क्योंकि उभरे हुए बिंदु होते हैं, एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता है वो पढ़ता है। Braille is based upon a grid of 6 small dots. These dots are numbered 1 to 6, and when raised in different combinations, they represent different letters, numbers, and punctuation marks. For instance, the letters A to J are represented by raising the top 4 dots. Letters K to T are defined by raising dot 3, while the rest of the letters are represented by raising dots 6 and 3. A unique character is used before to distinguish between numbers, letters, and punctuations. ब्रेल की खासियत यह है कि 6 ही बिंदु हैं। दुनिया की कोई भी भाषा हो, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे उर्दू हो, चाहे टर्किश हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, हिंदी हो, सब की सब भाषाएं इन्हीं 6 बिंदुओं से बन करके लिखी जाती हैं। The origins of Braille in India can be traced back to colonial times, when British missionaries and officials introduced and adapted several versions of Braille to Indian languages. However, organized attempts at educating the blind only began in 1887 with the establishment of the Sharp Memorial School for the Blind at Amritsar. In pursuance of the report on blindness in India in 1994, the Central Braille Press was established at Dehradun in April 1951. It was first of its kind Braille institution that aimed to produce Braille literature in all Indian languages and make every effort possible to educate the visually impaired. Initially, the press was started in a few rooms in the training center for the adult blind, but in 1954 it moved to its new building, which was constructed at the cost of 1,40,000 rupees. The press produced its first book early in 1952. Since then, it has transcribed more than 2,000 titles into Braille. After 71 years of its establishment, the Central Braille Press still holds the position of the most prominent institution of its kind, not only in India, but in Asia as well. Beyond providing the Braille literature, the Braille Press also provides people with disabilities training and employment opportunities, as a large number of people working here are visually impaired. There are mainly 4 types of books that are published here. The first is school textbooks that are prescribed by various education boards. Apart from textbooks, religious books such as Japuji Sahib, general books, and magazines are also published here. The magazines are carefully edited to cater to different sets of audiences. The general information and news are covered in Braille Dhara and Braille Chronicle. Specifically for women, the editing team collects top articles from different magazines and combines them into a magazine called Antarpat. The major clients of Braille Press are the Delhi Bureau of Textbooks,
Samagra Shiksha, Uttar Pradesh, and the Election Commission of India. The Central Braille Press, along with the Election Commission of India, is involved in an important task of providing an equitable landscape for implementing one's constitutional right, that is, the right to cast a vote. हम लोग तो जाते हैं अपना फट से गए अपना अपना वोट कास्ट करके आ गए, लेकिन ब्लाइंड भी अपना ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना उसका 100% पार्टिसिपेशन रहेगा, क्योंकि ब्लाइंड बोलते हैं मैं क्या करूँगा, मैं तो किसी को लेके जाऊँगा, वो वहाँ पे मेरा अंगूठा दबा देगा, वो भी मेरा देखना, तो कोई सीक्रेसी नहीं रहती थी। तो 2009 में हम लोगों ने क्या करा, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके हम लोगों ने एक डमी बैलेट पेपर बनाया। जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, जो खड़े होते हैं, उनका जो है एक पूरा जो आता है फॉर्म 7 तैयार होके जो फाइनल उनका अपडेट आता है, तो वो हम लोग जो है उसकी डमी बैलेट पेपर ब्लाइंड के लिए भी तैयार करते हैं। The press undertook another initiative along with the Election Commission to make accessible EPIC cards in which the Braille equivalent of a voter card is printed alongside the voter card. With these initiatives, about a twofold rise in visually disabled voters has been recorded, and the awareness amongst the general public regarding the use of Braille has also increased. While the work done in collaboration with the Election Commission of India is extremely important and unique, the primary role of the press is to produce literature for the visually impaired. The first step of a Braille book manufacturing is Braille data entry. People working in this department lay the foundation of any Braille book by entering the data with the utmost precision. जो बुक्स हमें दी जाती हैं या मैगजीन्स होती हैं, उनको हम कन्वर्जन वर्क भी करते हैं और 6 की डाटा एंट्री भी करते हैं। कन्वर्जन वर्क इसलिए कि हमारे पास जो अच्छी बुक्स होती हैं या मैगजीन्स होती हैं, उनको हम स्कैन करके कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्रेल में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ हमें इतना इंटरवेंशन करना पड़ता है ह्यूमन कि उनका हम लेआउट तैयार कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं। लेकिन जो बुक्स या मैटर हमें पास ऐसा मिलता है जो थोड़ा पढ़ा नहीं जाता, जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर उसके हम डायरेक्ट 6 की एंट्री करते हैं। ब्रेल में कुछ ऐसे जो सिंबल्स हैं या डॉट्स हैं जो अभी प्रॉब्लम देते हैं कि कई चीज़ों के सिंबल नहीं हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ की एक वो हमारे भारत में एक BCI है, ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। हम प्रेस में करीब 31 ईयर हो गए हैं हमें जुड़े हुए। हाँ, ब्रेल प्रेस में तो बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं कि जिससे कि हम जिस टाइम पर आए थे वो बिल्कुल जैसे कि ब्रेल प्रेस एक बच्चा था और अब जवान हो गया है, क्योंकि जिस टाइम पर हम यहाँ पर जुड़े थे वहाँ पर स्टीरियोटाइप मशीन्स हुआ करती थी, जिसके ऊपर मास्टर प्लेट्स बनती थी एल्युमिनियम की, जिंक की, और उसका प्रोडक्शन बहुत स्लो होता था। और अब कंप्यूटर से काम करते हैं, तो जो 6 की एंट्री होती है उससे भी अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, और जो हम कन्वर्जन वर्क करते हैं उससे तो और भी अच्छा वर्क निकलता है। After the data is checked and the layout is finalized, books are sent for printing in the Braille room. With technological advancements, the manual embosser has been replaced with advanced Braille machines. After this change, the production has increased significantly, and the press can meet the increasing demand. The manual embosser has been the reason behind many injuries in the past, but even now, as a souvenir, it is kept safely in the press in working condition, and it is used to print a few religious books. मशीनों में हमारे अपग्रेड हुआ, काफ़ी स्पीड वाली मशीनें आई, हमारे जो सॉफ्टवेयर आए ब्रेल को ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर, तो उसमें काफ़ी हमें फ़ायदा मिला। जैसे कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है हमारे पूरे इंडिया की, सबके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया गया डक्सबरी द्वारा कि हमारे में यूनिकोड फॉर्म में लिख होना चाहिए और हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं ब्रेल में। अभी पंजाब का काम करा हमने, तो इसी तरह उन्होंने हमें बना के दिया एक्सेल में, तो हमने पूरा वो ट्रांसलेट करके दे दिया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे पंजाबी लैंग्वेज को भी उन्होंने वो डक्सबरी सॉफ्टवेयर के अंदर फिट कर दिया। हमारा सक्षम है दिल्ली में, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वही प्रोवाइड करते हैं हमें यहाँ पे डक्सबरी का, तो उनके कुछ लोग उनके साथ जो करते हैं कि हमें यहाँ कौन कौन से फॉन्ट यूज होते हैं, हमें किस तरह से हिंदी लिखते हैं, किस तरह से पंजाबी लिखते हैं, तो सब कुछ बताया गया है। उस हिसाब से फिर ब्रेल में डॉट बना के उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। हमारे पास ये ब्रेलो नॉर्वे की है। सबसे पहले हमारे पास 1997 में ब्रेलो 400 SR आया था, यहाँ पे एक प्रिंटर था, फिर उसका अपग्रेड वर्जन आया 440 SW, अब हमारे पास 650 SW, ये बाहर लिखा है, ये वाला आ गया। 650 SW का मतलब है करेक्टर पर सेकेंड, 650 करेक्टर पर सेकेंड ये एम्बोस करता है।
Apart from manufacturing Braille books, the Central Braille Press also serves people with low vision by printing books in a larger print. Mostly, educational books that are prescribed by the CBSC and other state boards are printed in this unit. क्रिकेट होती है उसकी बॉल लगी थी, इस एक्सीडेंट में प्रॉब्लम आई थी। मेरी फैमिली में पीढ़ी कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम है, पापा भी ऐसी है। शुरू से तो आंखें खराब हो गई, 2 साल के थे करीब। चेचक था गांव में, पूरे चेचक में ही गड़बड़ हो गई सब। तो आज वो 50 साल की उम्र है पापा की। तो उसके बाद हमें 3 भाई ब्लाइंड, पापा 4, और वो फैमिली में भी था वो चाचा की लड़कियाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि उनमें सबसे पहले मेरे को यहाँ ब्लाइंड फील्ड में आने का मौका मिला, और मैंने तब ये चीज़ देखा आगे। तो मेरे को पहले हम बहुत दुख करते थे इस चीज़ का। घर वालों कहीं जाने भी नहीं देते थे। फिर मैं कहीं अकेले गया भी नहीं, कि कोई दोस्तों से भी पता नहीं चल रहा था। फिर धीरे धीरे जानकारी हुई तो मैंने फिर घर वालों को ज़बरदस्ती से निकल गया बाहर। मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे आया हूँ और अपने जो दुख है मेरा वो बांटा मैंने यहाँ पे। ब्रेल तो इसे मैं शुरू से नहीं सीख पाया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था स्कूल के विषय में ना। तो यहाँ पे जब से आया है, हमको यहीं NIVHN से ब्रेल सीखने का मिला थोड़ा बहुत। Braille represents competency, independence, and equality. Central Braille Press is the pillar that enables it. समय बहुत बदल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड आता जा रहा है, हर कुछ डिजिटल होता जा रहा है। लेकिन डिजिटल होने के बावजूद भी आपको लिटरेसी, आपको अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। आप तभी साक्षर कहलाएंगे जब आपको अक्षर ज्ञान होगा। अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो आप जितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, आप निरक्षर ही कहलाएंगे। आज की तारीख में बहुत सी दवाइयां आने लगी हैं जिनके पैकेट्स पर ब्रेल में लिखा हुआ होता है कि उस दवाई का क्या नाम है। आप विदेशों में रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, मेन्यू से ब्रेल में लिख आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो सुरक्षा कार्ड होता है वो ब्रेल में उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप लिफ्ट में कहीं जा रहे हैं, चाहे आपने हिंदुस्तान में बहुत जगह पे देखा होगा, लिफ्ट में बटनों पर ब्रेल में मार्किंग होती है कि किस फ्लोर पर जाना है, किस फ्लोर पर नहीं जाना है। यदि आपको ब्रेल नहीं आती है और आपने लिफ्ट में जा रहे हैं तो वहां पर आपको तकनीकी मदद नहीं कर पाएगी। आपको ब्रेल में लिखे हुए बटनों को ही पढ़ करके समझना पड़ेगा कि आपको किस फ्लोर का बटन दबाना है। मैंने शुरुआत से ही ब्रेल के माध्यम से ही अपनी शिक्षा ली है, और ये समझिए कि मैं 80 से ब्रेल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं स्कूल में रखा हूँ कदम, तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ ब्रेल से। मेरी पूरी शिक्षा ब्रेल पर ही निर्भर रही है। उनका तो महत्व ब्लाइंड के जीवन, जो भी दृष्टिबाधित है उनके जीवन में ब्रेल का महत्व तो समझ लीजिए कि यूँ है जैसे कि भोजन का संबंध होता है एक व्यक्ति से, क्योंकि भोजन अगर नहीं करेगा व्यक्ति तो वो चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार अगर ब्रेल कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं सीख पाता है, वो चलने को तो चल लेगा आजकल के हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से नहीं चल सकता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति चलता है अपने। क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी सुनकर चीजें याद तो कर लेता है कुछ, लेकिन जो पढ़ने का अंतर आता है, जो हम पढ़ते हैं कोई भी चीज, उसका जो ज्ञान होता है वो जल्दी से जल्दी हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं और पढ़कर उसको लिखना, ये जब दोनों काम करते हैं, वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जल्दी जाता है। समीक्षा अधिकारी के पद पर मैं कार्यरत हूँ, तो इनका समीक्षा जो अधिकारी होता है, रिव्यू ऑफिसर, उसका मेन होता है किसी चीज की समीक्षा करना, किसी फाइल की समीक्षा करना। जब फाइल पढ़ेंगे तभी तो हम उसकी करेंगे समीक्षा। स्टेट GST के लिए काम करती हूँ, यूपी स्टेट GST एज ए पर्सनल असिस्टेंट। मैं जब 12 साल की थी तब से मेरी आईसाइट का लॉस हुआ है, और तब से मैंने ब्रेल में ही अपनी एजुकेशन को रिन्यू किया है, और मैंने अपनी सारी एजुकेशन ब्रेल बुक्स को पढ़कर ही पूरी की है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी। और आज भी मैं ब्रेल बुक्स को ही फॉलो करती हूँ। आज की टाइम में मैं मतलब ब्रेल के बिना नहीं कल्पना कर सकती कि किस तरीके से वाकई। एक बार मेरे माइंड में था क्वेश्चन कि ब्रेल क्या लाइफ बनाएगा, जब मैंने शुरुआत सीखा।
और जैसे मेरा एडमिशन हुआ और मैं आगे बढ़ने लगी तो मुझे ब्रेल की इम्पोर्टेंट पता चली। ब्रेल्स में मैंने अपने सिलेबस तो पढ़े ही, साथ में नॉवेल्स, काफ़ी लेंदी नॉवेल्स भी मैंने काफ़ी पढ़े। ब्रेल को पढ़ के ऐसी खुशी होती है कि जैसे लगता है मतलब पता ही नहीं क्या मिल गया, उतना तो शायद कुछ और खुशी होगी ही नहीं कुछ भी करके। यदि तो ब्रेल को पढ़ के होती है, अरे वाह, ये वो तुरंत बुक्स आई नहीं कि फिंगर्स अपने आप मूव करने लग गए उस पर। कहते हैं ना, एक जीवन का अभिन्न अंग, जैसे खाना पानी जरूरी है वैसे ही पढ़ने के लिए ब्रेल जरूरी है। The Braille literacy rate in India is still stuck at just 1%, which leaves more than 39 million visually challenged individuals outside of the literacy program. This immense challenge can only be addressed by access to more Braille material, like the ones published by the Central Braille Press.